آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 21 باب پہلی سے 14ویں آیات تک۔ بعد ازیں یسوع نے پھر اپنے آپ کو تباریہ کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا: شمعون پطرس اور توما عرف دیدمس اور کانائے جلیل کا نتنیل اور زبدی کے بیٹے اور اس کے 2 اور شاگرد اکٹھے تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا کہ میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ پس وہ نکل کر کشتی پر چڑھے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ اور جب صبح ہوئی تو یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، لیکن شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ تب یسوع نے ان سے کہا، اے نوجوانوں، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو تم پاؤ گے۔ پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت کے سبب سے کھینچ نہ سکے۔ تب اس شاگرد نے جسے یسوع پیار کرتا تھا پطرس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ پس شمعون پطرس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے، چوگا کمر سے باندھا کیونکہ چار جامہ تھا، اور جھیل میں کود پڑا۔ اور باقی شاگرد مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے کشتی پر آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے، بلکہ تقریباً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ پس جو ہی کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی دیکھی اور روٹی بھی۔ یسوع نے ان سے کہا، ان مچھلیوں میں سے لاؤ جو تم نے ابھی پکڑی ہیں۔ شمعون پطرس نے چڑھ کر جال کنارے پر پھینکا۔ یہ 153 بڑی بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر باوجود اس کے کہ اتنی تھی جال نہ پھٹا۔ یسوع نے ان سے کہا، آؤ ناشتہ کر لو۔ شاگردوں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھے کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی، اسی طرح مچھلی بھی۔ یہ تیسری مرتبہ تھا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو دکھائی دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ 14 اپریل روز جمعہ کی تلاوتوں کے ساتھ بابو الیاس جیمز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز مومنین، زندہ خداوند یسوع مسیح کا تجربہ شاگردوں کی امید کو بڑھاتا ہے۔ وہ ان کو یقین دلاتا ہے کہ اگرچہ وہ صلیب پر مصلوب ہو کر مر گیا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ زندہ ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر ایک نئے انداز سے اپنے باپ کے مشن کو جاری اور ساری کرے گا۔ مسیح یسوع پر جو خدا کا برگزیدہ اور اکلوتا بیٹا ہے، وہ باپ کی تابعداری کرتے ہوئے اپنے شاگردوں بلکہ بہت سے گناہگاروں کے لیے خدا کے رحم کا سرچشمہ ہے۔ وہ گناہگاروں کا شافی ہے۔ اس کی موت ہمارے لیے زندہ رہنے اور نئی زندگی پانے کا وسیلہ بنی۔ موت فتح کا لقمہ بن گئی۔ اس کی صلیب شفا کا باعث بنی ہے، جو ہمارے ایمان اور بھروسے کے ساتھ مصلوب یسوع اور اس کی قربت میں آتا ہے۔ وہ اس کا رحم، معافی اور سلامتی کا تحفہ پاتا ہے۔ پطرس اور دوسرے رسول بھی
यीशु के नाम में दूसरों को शिफा देने की कुव्वत रखते हैं, वो उसके नाम की बढ़ाई करते हैं। जिंदा यीशु पर ईमान लाने के सबब उसके शागिर्द उसके गवाह बने। अमाल की किताब में हम इब्तदाई मसीहियों के ईमान की गवाही का जिक्र सुनते हैं। अपने मसीहा की मोहब्बत में सरशार होकर वो उसके नाम की गवाही अपने अमालो किरदार से देते हैं। पहली सदी की कलीसिया मिसाली कलीसिया समझी जाती है। वो हर तरह से आने वाली सदियों में मसीही ईमान का आला नमूना पेश करती है। उनकी पहचान, उनका रहन सहन और उनका ईमान जिंदा यीशु पर था। अपने इस ईमान के बायस वो मसीह यीशु की मोहब्बत और आपस में यकदिल होकर सच्चे खुदा की प्रशंसा करते और उसकी हम्दो सना करते थे। उनके दरमियान कोई इख्तलाफ ना था, बल्कि वो हर चीज़ में शराकत करते और एक दूसरे की ज़रूरतों में मुआवनत करते थे। मसीहियों में बाहमी शराकत और रफ़ाकत जो उनकी ख़ास पहचान बन गई, यही उनकी ज़िंदगी का ख़ासा और उनके ईमान को मजबूत करने का सबब भी था। यकीनन जब खुदा के वफ़ादार लोग उसकी मोहब्बत और बाहमी कुर्बत और शराकत की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये उनके लिए खुदा की ख़ास बरकत का बायस बनती है। लोग अपने ईमान में कायम रहकर खुदा की इलाही कुर्बत का तजर्बा कर सकते हैं और उसके साथ वाबस्ता रहते हुए उसकी सलामती और रहम को भी हासिल करते हैं। एक दूसरे के लिए उसके रहम, सलामती और खुशी का वसीला बनते हैं। चुनाचे जिंदा यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग जी उठने के फजल और खुशी में चलकर उसके नाम की गवाही देते हैं। हम मसीही लोग पाशकई लोग हैं। मुक़द्दस अगस्तिन फरमाते हैं कि हम मसीही पाशकई लोग हैं या पाशकई लोग कहलाते हैं और हालेलुया हमारा नारा है। पाशका के मौका पर और तमाम तर इबादत जो पाश के मौसम में कलीसिया अदा करती है, उन इबादत में यही पाश के नारा यानी हालेलुया पढ़ा या गाया जाता है, जो कि कलीसिया के एक ही ईमान और जिंदा यीशु के साथ रफ़ाकत की गवाही है। जब जब और जहाँ जहाँ भी मसीही लोग अपने ईमान में यकजा होकर एक ही रूह की हदायत से अपने ज़िंदा मसीही ईमान को अमल में लाते हैं, तो ज़िंदा मसीह खुदावंद उनके दरमियान हाज़िर होकर उनकी हिम्मत और हौसला बढ़ाता है। आज की पाक इंजील में हम देखते हैं कि तबारिया की झील के किनारे शागिर्दों पर यीशु का ज़हूर होता है। शमौन पतरस और तोमा, काना जलील का नतनएल और जब्दी के बेटे और उसके दो और शागिर्द इकट्ठे थे। और शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा कि हम भी तेरे साथ चलते हैं। पास वो निकलकर कश्ती पर चढ़े, मगर सारी रात उन्होंने कोई मछली ना पकड़ी। और जब सुबह हुई तो यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, लेकिन शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, ए नौजवानों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उससे जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो तुम पाओगे। पास उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत के सबब से खींच न सके। तब उस शागिर्द ने, जिसे यीशु प्यार करता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है।
पर शमौन पतरस ने ये सुनकर खुदावंद है चोगा कमर से बांधा, क्योंकि चार जामा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द मछलियों का जाल खींचते हुए कश्ती पर आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर न थे, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। बस यूं ही किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई देखी, और रोटी भी। यस्सु ने उनसे कहा, उन मछलियों में से लाओ जो तुमने अभी पकड़ी हैं। शमौन पतरस ने चढ़कर जाल किनारे पर खींचा। ये 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ था, मगर बावजूद इसके कि इतनी थी, जाल ना फटा। यस्सु ने उनसे कहा कि आओ नाश्ता कर लो। शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यस्सु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी। ये तीसरी मर्तबा था कि यस्सु मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों को दिखाई देता है। मेरे चीज़ों, खुदावंद हर रोज़ हमारे साथ होता है। खुदावंद हर रोज़ हमारी मदद के लिए आता है। खुदावंद हमेशा हमारी रहनुमाई करता है, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं, और कलाम मुक़द्दस में 365 दफ़ा लिखा गया है कि डरो मत। दैट्स मीन कि खुदा हर रोज़ हमारे साथ होता है। हमें उसकी कुर्बत को महसूस करने, उसकी कुर्बत में रहने की ज़रूरत है, ताकि हम आज के मौजज़ा की तरह खुदाम से बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल करते रहें कि खुदाम हमें ऐसा करने का फ़ज़ल दे, मसीह खुदाम के वसीले से।